بریڈفورڈ میں پاکستان کلب کی جانب سے پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام، جس میں بریڈفورڈ کے چیف پولیس کانسٹیبل، کراؤن کورٹ کے جج، لارڈ میئر، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان کلب کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے 48,000 پاؤنڈ کا چیک پیش کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے وقار بابر مغل کی یہ رپورٹ۔ بریڈفورڈ میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات اور مقامی حکام نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام بریڈفورڈ کے پاکستان کلب کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور انگلینڈ کے قومی ترانوں سے ہوا۔ شرکاء نے احتراماً کھڑے ہو کر ترانے سماعت کیے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض راجہ ایڈی نے سر انجام دیے۔ پاکستان کلب کے صدر بشارت علی اور چیئرمین شرجیل ملک نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ His Excellency Muazzam Khan, the High Commissioner of Pakistan, has paid us a great privilege by coming to Bradford from London just for the day. پاکستان کلب نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو انڈیجنس کمیونٹیز یہاں بستی ہیں ان کو اکٹھے کیا جائے، اور آج چونکہ ہائی کمشنر آف پاکستان بریڈفورڈ میں موجود تھے تو پاکستان کلب نے ان کے آنر میں یہ ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریڈفورڈ کیتھیڈرل میں یہ ڈنر ہو رہا ہے اور یہاں بین المذاہب لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستانی کونسل جنرل ابرار حسین نے ابتدائی کلمات میں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات کی۔ It was today a very, very lovely evening organized by the Pakistani Club, and I am particularly grateful to them. They did a wonderful job. They brought together all of us under one roof, and we thoroughly enjoyed it. It's a fantastic event. پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان اور انگلینڈ کے باہمی تعاون و تجارت کے حوالے سے تفصیلات بیان کی۔ پاکستان کی ترقی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ That as we are trying to rediscover our moral compass, only the cherished message of compassion and humanity, of humility and piety can navigate us through this wilderness of floods and acrimony. Ladies and gentlemen, as you all know, this is my first visit to Bradford and first interaction with the member of Pakistan Club. تقریب میں لارڈ میئر بریڈفورڈ کاؤنسلر شبیر حسین، چیف کانسٹیبل ناٹنگم شائر پولیس مسٹر کریگ گیلفورڈ، کراؤن کورٹ کے جج جوناتھن گبسن، مس جل آرنلڈ، مجسٹریٹ اینڈ جسٹس آف پیس اور ناتعینات جج احمد ندیم کے علاوہ کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات فیملیز کے ساتھ موجود تھیں۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کو سراہا۔ A huge thank you for being invited tonight to this fabulous occasion. There's some wonderful people here and it was a great pleasure to meet the Commissioner. So thank you very much indeed. Now we're going to have some amazing food. Very happy to be at the event today. It's a wonderful event to promote community and social cohesion. And we've had a very, very wonderful time. Pakistan Club hosted the High Commissioner of Pakistan in this fantastic and beautiful Cathedral of Bradford. It was an honor to host His Excellency the High Commissioner, Muazzam Khan Sahib, and I too was inducted as a member of the club. I am honored and privileged to be part of the club, and I wish to contribute to the immense work that's already been done. ساری بزنس کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے۔ ہمیں اس طرح گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے، اور جب بزنس والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی برانڈ کو بھی یہاں پہ UK میں ہم پروموٹ کریں۔ Nice to meet you. I'm Carl Oxford, Vice Chair of the Western North Yorkshire Chamber of Commerce Black and Asian Minority Ethnic Business Committee. It's absolutely fantastic to be here. It's been a marvellous event. The inaugural visit of the High Commissioner of Pakistan to Bradford. Interfaith, mixing together. I'm on the management team of the Yorkshire Asian Business Association, so it's a double pleasure to be here today. I happen to be also a lay canon of Ripon Cathedral, which is a sister cathedral of Bradford. Well, I think having lived in the area and worked in West Yorkshire for a couple of years, I'm very much affiliated to the area and like coming to these events. I'm a chief constable in Nottinghamshire, but I love visiting Yorkshire and I've still got family in Yorkshire. So one of my good friends is Yaqub.
who is a local individual, and he tells me all the good work that he does in terms of fundraising. इस मौके पर पाकिस्तान क्लब की जानिब से डैम फंड के लिए 48,000 पाउंड का चेक भी दिया गया। क्लब के ओहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर सफीर पाकिस्तान और काउंसिल जनरल को चेक पेश किया। आखिर में शुरका की तालियों की गूंज में सब्ज हिलाली केक काटा गया। 32 साल बाद आने वाले शदीद तूफान के बारे में मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान कहिएगा क्या अपडेट्स हैं तूफान के हवाले से? जी बिल्कुल, कल बरोज़ जुमा का जो है वो बरतानिया के अंदर एक बड़े ख़तरनाक जो है वो तूफ़ान की पेशन गोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, और कहा जा रहा है कि ये इतना शदीद जो है वो तूफ़ान हो सकता है कि जिससे कई घरों की छतें भी उड़ सकती हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेट ऑफिस ने जो है वो लोगों को घरों में रहने की हदायत की है, और उनका ये कहना था कि पिछले 32 साल से जो है वो ऐसा तूफ़ान बरतानिया के अंदर नहीं आया, और यही वजह है कि बरतानी हुकूमत ने जो है वो फ़ौज को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया है, और ये कहा है कि बहुत सारे जो बरतानिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो छतें इतनी मजबूत नहीं हैं, और तेज़ हवा और तूफ़ान की वजह से जो है वो छतें भी उड़ सकती हैं, और छतें उड़ने की वजह से जो है वो उनको लोगों को भी नुकसान हो सकता है। और साथ मेट ऑफिस का ये भी कहना था कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है वो दरख्त जो है वो भी टूट कर जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए जो है वो लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो घरों पर रहें, और जितना मुमकिन हो सके जो है वो इस तूफ़ान का जो है वो सामना करने के लिए लोग एहतियात से काम लें, घरों से कम बाहर निकलें, और जो है वो जिस वक्त ये तूफ़ान चल रहा हो उस वक्त भी जो है वो एहतियात बरती जाए। जी बुलेटिन में आ वक्त तो एक ब्रेक का। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, अलग अदालतों का देरीना मुतालबा मान लिया गया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी का कहना था कि काबीना ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक अलग अदालती निज़ाम बनाने की मंजूरी दी है, और ऐसा अलग अदालती निज़ाम में मुकदमात की तेज़ समाअत की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अलग अदालती निज़ाम होगा। इस्लामाबाद के लिए एक्ट काबीना मुश्तरका मफादात काउंसिल को भेज दिया। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे कानून बनाएंगे। हर शहरी का हक़ है कि मुकदमात के फैसले जल्दी हों। उनका कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानी ज़्यादा अरसा यहाँ रह नहीं सकते, उनकी मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए ये फ़ैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मफाद के लिए हर वक्त कुछ न कुछ सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कानून साजी न होने से सोशल मीडिया और कुछ चैलेंजेस पर लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग लंदन जाकर केसेस फाइल कर रहे हैं। लोगों का एतमाद अदालती निज़ाम पर मजरूह हो चुका। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजाल महमूद, दुबई में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल हसन अफजाल खान और डायरेक्टर पवेलियन रिजवान तारिक ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तानी पवेलियन के डिज़ाइन और क़द-ओ-क़ाल के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमारात के अहम तरीन दौरे के दौरान दुबई में मौजूद हैं। दुबई में उन्होंने मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। शाह महमूद दुबई एक्सपो 2020 पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। इस मौके पर शाह महमूद के हमरा सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद और कौंसल जनरल ऑफ दुबई कौंसलेट हसन अफजल खान भी मौजूद थे। पवेलियन को पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और सियाहत समेत 7 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब तक 10 लाख के करीब लोग एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तानी पवेलियन अपने मुनफरिद डिजाइन के बाइस दुबई एक्सपो 2020 में पहले 5 पवेलियंस में शामिल है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज समझा जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन बड़े निखार से मुल्क की सकाफत को दिखाया गया है। हज़ारों साल पुरानी तारीख को बहुत उम्दा तरीके से कशीद किया गया है। पाकिस्तान की बैनुल मज़ाहब शनाख्त को दिखाने पर फ़ख्र है। उनका मज़ीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत काबिल तारीफ है, जिन्होंने नहायत उम्दगी से दुबई एक्सपो का इनेकाद किया। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन के डिज़ाइन और खूबसूरती को सराहा और मुंतज़मीन को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन विजिट के दौरान अमाराती कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला, हिज एक्सीलेंसी हुज़ैफा इब्राहिम समेत PTI दुबई के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसफ जमान, दिलम स्टार अजीम डार और दीगर से खुसूसी मुलाकात भी की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो 2020 के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन के अलावा सऊदी अरब, तुर्की, UAE, OIC और चीनी पवेलियन के दौरे भी किए। तमाम पवेलियंस में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा के हमरा सफ़ीर पाकिस्तान अफजल महमूद, कौंसल जनरल हसन अफजल खान और कौंसल शाजिया सिराज और दीगर सफारती अमला मौजूद था। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मसरूफ़ तरीन शेड्यूल। दुबई एक्सपो 2020 दौरे के दौरान दोस्त ममालिक के पवेलियंस भी गए जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी OIC पवेलियन पहुंचे जहां डायरेक्टर पवेलियन OIC ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने OIC पवेलियन में बज़रिया वीडियो मैसेज OIC के तमाम वज़राए ख़ारजा को 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास की दावत दी। इसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क पवेलियन का दौरा किया जहां UAE में तुर्की के सफ़ीर और कमिश्नर जनरल ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया और तुर्क सकाफत को मुनफरद अंदाज में उजागर करने और तारीखी विरसे की उम्दा नुमाइश पर तुर्क हुकाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने विजिटर बुक में अपने तासरात भी कलम बंद किए। Turkish pavilion to express solidarity with the great people of Turkey. Turks we love. We have a beautiful relationship with Turkey, and I've come specially to the pavilion to wish my friend Mevlut a speedy recovery from COVID-19. Best of luck and see you soon in Islamabad for the OICC. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UAE पवेलियन का दौरा भी किया और दीगर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने पवेलियन के मुख्तलिफ हिस्से देखे और तारीखी और सकाफती विरसे की मुनफरद नुमाइश को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने एक्सपो 2020 के कामयाब इनेकाद पर मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत को मुबारकबाद भी पेश की। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी चीनी पवेलियन पहुंचे जहाँ पवेलियन डायरेक्टर ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने 350 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली चीनी ट्रेन का डिजिटल मॉडल भी देखा। पवेलियन डायरेक्टर और इंतजामी अफसरान ने चीनी पवेलियन का दौरा करने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के पवेलियन पहुंचने पर सऊदी असिस्टेंट कमिश्नर जनरल और दीगर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। उन्होंने सऊदी पवेलियन का डिज़ाइन और खदोखाल को सराहते हुए उसे सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का अक्कास करार दिया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में मुत्तहदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। उनके एजाज़ में मारूफ बिजनेसमैन इमरान चौधरी की तरफ से इशाया भी दिया गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली तकरीब का अहवाल जानते हैं मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा इकट्ठ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के इस बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हैं। UAE मुश्किल वक्त का साथी है, हम भी आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। जिन्होंने यहाँ कुछ और इंस्टेबिलिटी की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर असल तब्दीली लेकर आए हैं। मुआशी तौर पर गैर मुस्तहिक मुल्क की गुजारिशात बैनुल अक़वामी दुनिया नहीं सुनती। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहिकम करने के लिए नई खारजा पॉलिसी तश्कील दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मुआशी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया जा चुका है और इसी पर अमल किया जा रहा है। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत ओवरसीज जी ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने किया था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अक़वाम आलम में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दिलाई। उनका कहना था PTI हुकूमत सरमायाकारों से भरपूर ताआवुन करेगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से जद्दा रीजन के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल सबूर के एजाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें JUI के अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि JUI मुल्की निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाने की जद्दोजहद जारी रखे हुए है। तफ़सीलात उमैर अली की रिपोर्ट में।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में मुकर्रीन का कहना था कि क़याम पाकिस्तान के लिए उलमा कराम का बड़ा अहम किरदार रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी उलमा कराम अहम किरदार निभा रहे हैं। मुकर्रीन का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की क़यादत में पाकिस्तान में दीन के फ़रोग़ के अलावा सियासी मैदान में भी सरगर्म अमल है और मुल्की निज़ाम को आइन के मुताबिक चलाने की जद्दोजहद जारी रखे हुए है। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क कौम की बका कुरान और सुन्नत पर अमल करने से है और हमारा आइन तमाम अकाइयों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसके लिए इसका मुकम्मल नाफिज़ुल अमल होना ज़रूरी है। तकरीब से मौलाना अब्दुल हकीम दिशानी, मौलाना हबीबुल्लाह कुरैशी, हाफिज़ ज़ाकिर जज़बी समेत दीगर शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया। इस्तकबालिया तकरीब में रियाज रीजन के अहदेदारों ने जद्दा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल सबूर को खुशामदीद भी कहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली एजाज़, मदीना मुनव्वरा ख़वातीन के लिए महफूज तरीन शहर करार। बरतानवी इदारे ने तन्हा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए मदीना मुनव्वरा महफूज तरीन शहर करार दे दिया। दूसरी तरफ फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज शहर करार दिया गया। देखते हैं रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट। बरतानवी इदारे इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से तनहा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन शहर की फहरिस्त जारी की है, जिसमें खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा को महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। इदारे का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में जराइम की शरह इंतहाई कम है। इदारे ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को मुसाफिर खवातीन के लिए सबसे कम महफूज शहर करार दिया है, जहाँ कोई खातून अकेले बाहर सफर करने से हिचकचाती है। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर खवातीन के लिए महफूज शहर थाईलैंड का शहर चियांग माई है, तीसरे नंबर पर दुबई है, चौथे नंबर पर जापान का शहर क्योटो है, जबकि 5वें नंबर पर चीन का शहर मकाओ है। कनाडा में महंगाई पर अफराते ज़र 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। जनवरी में अफराते ज़र की शरह 5.1% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहरियों को गैस बहरान का सामना है। तफसीलात के मुताबिक शुमारियात कनाडा का कहना है कि जनवरी में अफराते ज़र की सालाना शरह बढ़कर 5.1% हो गई, जबकि दिसंबर में 4.8% का इजाफा हुआ था। माहिरीन के मुताबिक कनाडा में गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। अभी तक कनाडा में गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। जनवरी में ज्यादातर इजाफा हाउसिंग, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा देखा गया। शुमारियात कनाडा का मजीद कहना था कि कनाडा में गैस की कीमतें बढ़ गईं। जनवरी 2021 के मुकाबले में गुज़श्ता माह गैस और तवानाई की कीमतों में 31.7% इजाफा हुआ। शुमारियात कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में अफरात ज़र की वजह तमाम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। जनवरी के माह में अशियाए खुरनोश की अलावा सबसे ज्यादा इजाफा तवानाई और ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा देखा गया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।